سکتا گندا ہاتھ وٹا نہیں سکتا سو کھا رہی ہے میری دل تو واپس کوئی بھی جا نہیں سکتا سو کھا رہی ہے دل تو میری واپس کوئی نہیں جا نہیں سکتا پھر اس دے رکھوالے کٹھے ہو گئے بھائی اجازت لوئی بھائی اس دے رکھوالے کٹھے ہو گئے توڑ کے سنگل تالے کٹھے ہو گئے توڑ کے سنگل تالے کٹھے ہو گئے ساڈے کٹھ نو توڑ کے ہو بخاوے کوئی ساڈے کٹھ نو توڑ کے ہو بخاوے کوئی قوم دے گبرو پالے کٹھے ہو گئے اور میرا تعلق PCCI سے ہے پاکستانی کرسچنز کنسرن انٹرنیشنل اور ہمارے یہ جو گروپ ہے یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ آل اوور ورلڈ جو ہے تقریباً دنیا کے 28 ممالک میں PCCI ہے اور یہ مظاہرے جو پوسٹ کنورژن کے پاکستان میں کراچی میں بھی شروع ہوئے ہیں یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں جائیں گے اگر تو حکومت نے یہ بل پاس نہیں کیا جو کہ فورس کنورژن کا ہے تو یہ مظاہرے بڑھتے ہوئے پوری دنیا میں یہ میسج جائے گا امریکہ میں کینیڈا میں اور یورپ میں اور تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جو انٹرنیشنل ممالک ہیں تمام یہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے جو پاکستانی ہے ان کا دل بھی ہمارے ساتھ ہی دھڑکتا ہے وہ بھی اس غم میں ہمارے برابر کے شریک ہوتے ہیں جب ایک گھر سے ایک مسیحی بچی کو یا ایک ہندو بچی کو جب کنورٹ کیا جاتا ہے زبردستی فورسیبلی اس کا نکاح کر کے اس کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو اس وقت ہر گھر میں اور ہر گھر میں ہمارے بشمول میرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بہن کو یا میری بچی کو جو ہے اس طریقے سے انہوں نے کنورٹ کیا اگر یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا ایکا ہونا مشکل نہیں ہے لیکن افسوس کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے کے گھر میں لگی ہوئی آگ ہے تو اس کا گھر جلا رہی ہے یہ مت بھولیے گا کہ کل کو یہ آگ ہمارے گھر کو بھی جلا سکتی ہے آج یہ پہلا قدم ہے جو نویل اعجاز بھائی نے اٹھایا اور ہم سب اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور PCCI کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہوں گا میں یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قدم کو یہ رکنے نہیں دیں گے اور یہ جدوجہد آگے چلتی رہے گی اور یہ جب تک یہ بل پاس نہیں ہو جاتا جبری مذہب تبدیلی کا تب تک یہ جدوجہد رکے گی نہیں اور آج جو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم آیا اور ہم لوگوں نے بہت اچھی یونٹی دکھائی ہے تو یہ آئندہ بھی تواتر سے یہ مظاہرے ہوتے رہیں گے جب تک کہ یہ بل پاس نہیں ہوتا اور یہ بات آپ لوگوں کے سب کے علم میں ہے کہ جبری مذہب تبدیلی ایک ایسا ہتھیار ہے یا ایک ایسا ہتھ کنڈا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے ہماری مسیحی بہنوں بچیوں کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جبری مذہب تبدیلی کا کیس کسی مرد کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا کسی جینٹس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ ہمیشہ لڑکیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کوئی جینٹس کیوں نہیں آتا یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے یہ ہمیشہ ہماری بچیوں کو ہی اس طریقے سے ورگلایا جاتا ہے اور ان کو دھمکایا جاتا ہے اور ابھی چھاویہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے ایک نابالغ کو اس کے والدین کے حوالے کیا تو پھر سندھ کورٹ جو ہے وہ کیوں اس کو شیلٹر ہوم میں رکھ رہی ہے عارض الواجہ کیس میں جو ہوا ہے اور اس طریقے سے اگر ہم نے پروٹیسٹ جاری نہ رکھے یا ہم نے اپنے جدوجہد کو جاری نہ رکھا تو یہ تواتر سے واقعات ہوتے رہیں گے جیسے اندرونہ سندھ میں میاں مٹو ہے جو پیر ہے انہوں نے بہت سارے ایسے کیسز کیے ہیں کہ انہوں نے جبری مذہب تبدیلی میں ہماری بہت ساری ہندو بچیاں ہیں ہندو بہنیں ہیں ان کو اس طریقے سے انہوں نے جبری مذہب تبدیلی اور تواتر سے شکار بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں میرے خیال میں 90 میں سے وہ 10% بھی 100 میں سے 10% بھی رپورٹ ہوئے ہوں گے اور 90% رپورٹ نہیں ہوتے تو یہ بڑی ایک فکر انگیز بات ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور بہت بہت شکریہ نویل اعجاز بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور یہ احتجاج میں اینڈ اپ کروں گا کہ احتجاج کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے اس کو ایسے ہی کنٹینیو رہنا چاہیے ہمارے تمام مسیحی بہن بھائیوں سے
یہ گزارش ہے, یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ایکے کو برقرار رکھیں اور بھرپور شرکت کریں آئندہ آنے والے لائحہ عمل میں بھی, جو کہ متحدہ مسیح کونسل یہ جو فارم ہوئی ہے اور اس کے سارے جیسے بہت ساری آپ بیرا میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے سارے ایک تنظیموں کے ایک واحد پلیٹ فارم کے اوپر سب جمع ہوئے لوگ. یہ ایک بہت مشکل چیز تھی کیونکہ ہمارے عموماً جو ہے ایک گھر میں دو بھائیوں کی رائے برابر نہیں ہوتی, الگ الگ چلتے ہیں, تو یہ ایک پوائنٹ کے اوپر اتنے سارے مسیحیوں کو اکٹھا کر لینا خصوصاً سیاسی, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سب سے پہلے تو میں نویل اجاز بھائی کو کہوں گا کہ بہت بڑی اچیومنٹ ان کی کہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. اور اس نعرے کے ساتھ میں اختتام کروں گا, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. مسیحوں کا ایک مذہبی اقلیتوں کا ایک جمع غفیر نظر آ رہا ہے. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, آج جس طریقے سے متحدہ مسیح کونسل کے پلیٹ فارم سے آج لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں, مائیں بہنیں اپنے گھروں سے نکلی ہیں, اور سب سے بڑی یہ جو بات ہے کہ ہماری کلرجی, ہمارے جو پاسٹر صاحبان ہیں, ہماری مذہبی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پیٹ در پہ جب مسیحوں پر, جب مذہبی اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو لوگ چلاتے ہیں, لوگ روتے ہیں, لوگ مجبور ہیں تو کراچی پریس کلب کا رخ کرتے ہیں. ہاللویا, زوردار آواز میں ہاللویا. وہ قوم, وہ لوگ مسیحی بالخصوص جنہوں نے پاکستان بنانے کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کیا, جنہوں نے اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں دیا, آج وہ در بدر ہیں اور ظلم اور بربریت کے پہاڑ ان پہ توڑے جاتے ہیں. کبھی ہمارے گھروں کو جلایا جاتا ہے, کبھی ہمارے کو جلتے بھٹوں میں پھینک دیا جاتا ہے, ہمارے گاؤں کے گاؤں جلا دیے جاتے ہیں, اور اب تو یہاں تک بات نوبت آ پہنچی ہے کہ ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. دلیل کی بات کرتے ہو تو ذلیل ہو جاؤ گے, دلیل کی بات کرتے ہو تو ذلیل ہو جاؤ گے. چند دن پہلے ہمارے ایف سی ایریے میں آپ نے ایک ایسے مائنڈ سیٹ نے ہماری ایک خاتون کو اغوا کر کے اس کے ساتھ جبری نکاح کیا, اور ایک ہفتے تک, کیا نام ہے, شیبا نام تھا اس کا, ایک ہفتے تک اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی رہی. اور جب پولیس نے, جب عدالتوں نے اسے گرفتار کیا تو نکاح نامہ نہیں نکلا, صرف اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے. ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں ہم. اور یہ سارا معاملہ جو ہے میرے دوستوں نے, دلاور بھٹی, ریحان گوری, آپ چند جو قوم پرست بندے ہیں, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اس معاملے کو دیکھا, اور آج فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ثبوت بھی چاہیے ہم وہ بھی آپ کو دیں گے. آج کے موقع کی مناسبت کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس ملک کے علاوہ ہر جگہ پہ احتجاجی مظاہرے آج ہو رہے ہیں. ملک کے باہر, 7 سمندر پار, اوورسیز بھی آج مسیحوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, آنا ہے کام کو, ہم پارلیمنٹ کو, قومی اسمبلی کو, جہاں ہمارا بل جو ہے مسترد کیا گیا ہے, جبری مذہب تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں کے بل کو فل فور اور من ون جو ہے اسے منظور کیا جائے. ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماں بہنوں کو عزت دی جائے, کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے
अमन सुलह और सलामती का मजहब है। हम तमाम दीगर अदियान का भी जो है एहतराम करते हैं। सो मुल्क में ये जो आग बर्पा की गई है, जो माइंड सेट है, अगर इसे आपने कंट्रोल ना किया वजीर आजम साहब, तो इसके नतायज जो है वो भयानक होंगे, भयानक होंगे, भयानक होंगे। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप सबको मेरा सलाम। और जो ये साइन हो रहे हैं, ये एक जॉइंट रेजोल्यूशन है मुत्तहिदा काउंसिल की तरफ से, क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से। इस सबकी तरफ जाएगा। काइंडली इस पे साइन करें, अपने नाम, अपने चर्च, ऑर्गेनाइजेशन उस पे लिखें। क्योंकि ये जो जॉइंट रेजोल्यूशन है मसीही कौम की तरफ से, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, तमाम लॉ मिनिस्ट्रीज, तमाम डिपार्टमेंट्स में जाएगा। तो आपके सामने ये जॉइंट रेजोल्यूशन है जो मैं पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि हम किस चीज पे साइन कर रहे हैं। Minimum age for marriage should be 18. Point number 2, there should be a federal minister from religious minority. Point number 3, 5% quota should be applied properly also for education sector with national and international scholarship. Religious minority worship places should be grabbed and not grabbed, and the government should provide legal assistance to the owner. In jail and state institution, there should be a separate place for worship to accommodate the non-Muslim workers and visitors. The government should give subsidy to the minority schools for the security, administration and the maintenance of the building. In case of abuse of blasphemy law, the related area of minority should be given particular protection. Proper legislation should be made to avoid discrimination on religious basis at workplace, school, society and business level. There is no forced conversion according to the Holy Quran, so proper legislation should be made against the kidnapping, sexual violence and the subsequent conversion to the Islam, which is to be used to provide legal framework to the legalize illegal and inhuman acts by the culprit who are not really propagating the true spirit of Islam. Eliminating of hatred material from all the scholars and non-scholars books and mean of communication. इस जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है वो ये है कि जो फोर्स कन्वर्जन का बिल है उसको मंजूर किया जाए, और जो फोर्स कन्वर्जन होती है हमारी मसीही बच्चों की जो सेक्सुअली जिनसी तौर पर उनका इत्तिसाल होता है उसको नामंजूर करते हैं। इसके लिए मुकम्मल तौर पर कानून साजी हो। जो मैरिज की उम्र है वो 18 साल हो। सिर्फ सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारी मसीही माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं उनकी शादी की उम्र जो है वो कम से कम जो है वो 18 साल हो। और जो हमारा रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा है उसके मुताबिक हमारे स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, हमारे वर्क प्लेसेस को जो है वो प्रोटेक्शन और सब्सिडी दी जाए। उसके साथ साथ हम ये कहते हैं जो हमारा फेडरल मिनिस्टर है फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि शहबाज भट्टी के बाद हमने देखा है कि कोई भी हमारा रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो फेडरल मिनिस्टर कोई भी नहीं है। तो हमारा ये भी मुतालबा है। और 5% कोटा जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर में नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है हमारे बच्चों को दी जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का भी उतना ही बराबरी का हक है। रिलीजियस माइनॉरिटी की जो वर्क प्लेसेस हैं यानी कि चर्चिस, इबादत की जो जगह है उनको ग्रैब ना किया जाए, ना उन पर कब्जा ना हो, और उनको जो है वो असिस्टेंस दी जाए। और अगर खुदा न खास्ता, जैसा कि अभी हमने देखा है कि सियालकोट में जैसा इंसिडेंट होता है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उस जगह पे जहाँ पे तौहीन रसालत का केस आता है तो उस एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए और कानून की जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि जो तमाम मसीही कौम है, अगर जो हमने अपना खून लहू जो है वो दिया है अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, तो जो रियासत मदीना है उसमें भी तमाम जो माइनॉरिटीज है उनके इक्वल राइट्स है। जो कानून है 1973 का आइन है
اس میں بھی مائنورٹیز ہیں جو ان کو کسی طرح سے بھی رنگ نسل مذہب کی کسی طرح سے بھی تفریق کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. تو ہم جو بل جو ہے نامنظور کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ بالکل اس کی کنڈیم کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. کیونکہ جو ناوا پوائنٹ ہے وہ سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ کوئی بھی جو فورس کنورجن ہے وہ نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے, اور جو ہے اس کے لیے پراپر لیجسلیشن کی جائے, اور جو ہے یہ بچیوں کو جو کڈنیپ کر کے ان کا سیکشولی اور وائلنس کر کے ان کا اتصال کیا جاتا ہے اس کو روکا جائے, جو اس کے لیے پراپر لیگل سیٹ اپ ہے اس کو بنایا جائے. ہمارا یہی مطالبہ ہے. اور یہ سب جو ہے نعیم گل بھائی جو ہم آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں, پلیز اپنے نام کے ساتھ اپنے چرچ نیم یا این جی او آرگنائزیشن کچھ بھی ہے اس کے ساتھ اپنا نام کے ساتھ سائن کریں, کیونکہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ صرف یہاں پہ سائن کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس کو پریزنٹ کیا جائے گا پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس, سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس, چیف آف آرمی اسٹاف, فیڈرل لا منسٹر, فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن, فیڈرل انٹیریئر منسٹر, فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹ اینڈ فیڈرل منسٹر فار ریلیجیس. بہت بہت شکریہ تبسم صاحبہ آپ کا. شام سلام پیش کرتا ہوں, سب کو سلام. آپ کی سلامتی ہو, آپ کی سلامتی ہو. دائیں بائیں بہت سے لوگ ہیں, ایک بہت بڑی بھیڑ, بہت بڑا قافلہ پیچھے بھی چلا آ رہا ہے, اور یہ سارا قافلہ, یہ ساری بھیڑ, یہ سیاسی پارٹیز کا ایک ہونا, یہ مذہبی رہنماؤں کا ایک ہونا, یہ چرچز کا اتحاد, یہ سماجی رہنماؤں کا اکٹھا ہونا, یہ اداروں کا یہاں موجود ہونا, اس بات کی علامت ہے کہ اب اتحادی روح یہاں پر موجود ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب کے دیکھ لو انقلاب آئے گا, اب کے دیکھ لو انقلاب آئے گا, اب پتھر کا اینٹ سے جواب آئے گا. اب کے دیکھ لو انقلاب آئے گا, اب پتھر کا اینٹ سے جواب آئے گا. منہ پر تماچا سہنے کی بات کرتے ہو, منہ پر تماچا سہنے کی بات کرتے ہو, کیا باری تعالیٰ سے اس کا ثواب آئے گا؟ اب پتھر کا اینٹ سے جواب آئے گا. اب ہم مسیحی لوگ, مسیحی بہنیں, مسیحی بیٹیاں, مسیحی لیڈر, مائنورٹیز لیڈر, ہمارے سکھ لیڈر, ہمارے ہندو لیڈر آج پریس کلب اس شہر کراچی میں آ چکے ہیں انصاف مانگنے کے لیے, اپنی بیٹیوں کی آواز بننے کے لیے. میں کہوں گا جبری تبدیلی مذہب آپ نے کہنا نامنظور, نامنظور. جبری تبدیلی مذہب نامنظور, نامنظور. جبری تبدیلی مذہب نامنظور, نامنظور. جبری تبدیلی مذہب, جبری نکاح نامنظور, نامنظور. جبری نکاح نامنظور, نامنظور. مائنورٹی کی بیٹیوں سے زیادتی نامنظور, نامنظور. مائنورٹی کی بیٹیوں سے زیادتی
ख्यालात का इजहार कर सकूं। और मैं इस जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की तरफ से, मुत्तहदा मसीही कौंसिल की तरफ से और तमाम मसीही कौम की तरफ से ये बाआवाज़ बुलंद करता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि कोई हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकेगा, अब कोई हमें दीवार से लगा नहीं सकेगा, ना ही हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम अब दीवार से लगेंगे नहीं, हम ना किसी से डरेंगे ना किसी से दबेंगे। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी इज्जतों के लिए, हम अपने माल के लिए, हम अपनी कौम के लिए आगे आए। और तमाम जितनी भी हमारी कौम है, हमारे नौजवान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को हम यहीं ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि ये कंटिन्यू रहेगा। और सबसे गुजारिश है कि इसी तरह भरपूर हमारा साथ दें, हमारे कदम के साथ कदम मिलाएं, ताकि हम मिलकर इस प्रोपोगंडे को, इस काले कानून को जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, हम उसका भरपूर एहतजाज कर सकें और अपने हकूक़ को इस मुल्क पाकिस्तान में हम मनवा सकें, क्योंकि हम भी उतने ही शहरी हैं जितना कोई दूसरा इस मुल्क का शहरी है। ये वतन हमारा भी उतना ही है जितना किसी दूसरे का है। तो हमें दीवार से लगाने की बराए मेहरबानी कोशिश ना की जाए, क्योंकि अब मसीही कौम दीवार से नहीं लगेगी। हमें हमारी भले आप गर्दनें काट दें, हमें बंद करना है बंद कर दें, जो कर सकते हैं आप कर लें, लेकिन अब ये सिलसिला नहीं रुकेगा। नोएल भाई की सरबराही में, मुत्तहदा मसीही कौंसिल की सरबराही में हम इस काफिले को वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच भी वहाँ नहीं जाती जहाँ तक ये काफिला जाएगा। तो लिहाजा इस मुल्क की हम सालमियत चाहते हैं, इस मुल्क के हम हक में, इस मुल्क के लिए हमने अपनी जानें दी हैं, हमने अपना खून बहाया है, हम हर तरह के इस मुल्क के मामलात में सीना ब सीना खड़े हैं। फौज के अंदर हमारे लोग उसी तरह शहीद होते हैं जिस तरह के दूसरे शहीद होते हैं। तो फिर हमें दीवार से क्यों लगाया जा रहा है, क्यों हमारी इज्जतों को उछाला जा रहा है, क्यों हमारे साथ ज्यादतियां की जा रही हैं? बराए मेहरबानी जितने भी लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हमारा ये पैगाम जहाँ जहाँ तक जा रहा है वो अपने कान खोलकर सुन लें कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए। बहुत शुक्रिया। स्काउट्स के तमाम दोस्तों का, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। और किसी का नाम लेना भूल गया था, उससे माजरत करता हूं कि तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, बल्कि इस कैंपेन को प्रॉपर चलाते रहे। जो दोस्त नहीं आ सके उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने कम से कम हमारे मैसेज को सुना तो जरूर। तो मैं आखिर में पाशा वसीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ से हम सबको रुखसत करेंगे। पाशा वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक रंगा साहब, आपके तमाम टीम का सर। ये मैं चाहूँगा कि स्काउट्स भी आगे आ जाएं ताकि हम इनके लिए भी दुआ करें। इन्होंने बहुत खूबसूरत इंतज़ामी हवाले से यहाँ पर जो एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है उसमें बड़ी तरतीब से लोगों की रहनुमाई की। हम नोएल भाई के शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख़ास तौर पर फोर्स कन्वर्जन पर यहाँ पर निकाली गई जो रैली है, एहतजाज है, इसको रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हम हुकूमत वक्त के सामने ये बात रख सके कि जो बिल मुस्तरद किया गया है उसे पास किया जाए। और आए हम तमाम मजहबी लीडर्स के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए शुक्रगुजार हैं। एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जमा है, ताकि हम मसीही कौम होते हुए अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर सके। और मेरा ईमान है कि जहाँ पर मसीही कौम
कौम ईमान से खड़ी हो जाती है वहां पर एक बड़ी तब्दीली रूनमा होती है। और आज का ये एहतजाज हम ईमान रखते हैं क्योंकि इरादे जिनके हो पुख्ता और नजर जिनकी हो खुदा पर तलातुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते हैं। और मैं मुस्लिम कौम से अपील करता हूँ कि जब भी नवाज भाई की तरफ से या उनकी तरफ से कॉल आए दोबारा एहतजाज के लिए तो और झोंकदार झोंक पानी के रेलों की मानद लोग यहाँ पर जमा हो ताकि हम अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए आवाज बुलंद कर सके और खुदावन हमें फतह बख्शे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने सरों को जो हम दुआ करते हैं झुकाकर। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे हजूर सरे मसजूद होते हैं और बिलखसूस खुदावंद तेरे लोग यहाँ पर जमा होकर मजहबी और सियासी लीडरशिप यहाँ पर जमा है और खुदावंद बड़ी तादाद में कलीसियाई अरकान यहाँ पर मौजूद है ताकि खुदावंद हम एक मसीही कौम होते हुए अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए हुकूमत वक्त के सामने आवाज बुलंद कर सके। हम दुआ करते हैं खुदावंद तू हुकूमत वक्त के तमाम उन खुदावंद सरकर्दा लोगों को, प्राइम मिनिस्टर को, पाक आर्मी को, चीफ जस्टिस को, ऐ खुदावंद हम तेरे यीशु नाम से उनके दिलों को चाहते हैं कि तू नरम कर दे मेरे खुदा, ताकि वो ये बिल जिसे मुस्तरद किया गया है वो पास करें ताकि तेरी तरफ से हुक्म जारी हो मेरे खुदा, ताकि मसीही कौम के साथ जो नाइंसाफियां हो रही है खुदावन, जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है खुदावन, हुकूमत वक्त इस पर गौर करने वाली हो ताकि मसीही कौम जो अमन और पीस का पैगाम रखती है वो दुनिया तक पहुंच सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं नौल भाई के लिए और सारी टीम के लिए, जितने भी खुदाम यहाँ मौजूद हैं सबके साथ हो, हम सबको प्रोटेक्शन दे। ये दुआ हम तेरे यीशु नाम के सीना से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदारान, NGO से ताल्लुक़ रखने वाले और हमारे मजहबी रहनुमा, सबको मसीह यीशु में सलाम। आज इस एहतजाजी मुजाहरे में हम जबरी मजहब तब्दीली और कम उम्री शादी के हवाले से इकट्ठे हुए हैं। हम ये वाज़िया करना चाहते हैं कि हम मजहब तब्दीली के खिलाफ नहीं है, जबरी मजहब तब्दीली के खिलाफ है। और ये पंडाल इस बात की गवाही देता है कि MQ पाकिस्तान जब जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर दुख या तकलीफ आई, जब बदामी बाग का मसला हुआ तो MQ पाकिस्तान ने सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा यहीं पे किया। और MQ पाकिस्तान अपने शोधा को भी नहीं भूलती। शहबाज भट्टी को शहीद किया गया तो सबसे पहले अगर शम्मे रोशन की तो इसी जगह पर MQ पाकिस्तान ने की। आज ये जब मुल्क बना तो उन बहनों ने, जिन बहनों ने आपकी मरहम पट्टियां की, आप उन्हीं के खिलाफ जो है उनको जबरी मजहब तब्दीली करवा रहे हो। जिन हाथों ने आपको एजुकेशन दी, आप उन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हो। वजीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सदर पाकिस्तान से यही मुतालबा करते हैं कि इनको बंद किया जाए, क्योंकि ये मसीह कौम अब उठ खड़ी हुई है। एक दफा पहले जब ये मुल्क बन रहा था तो ये मुल्क भी क्रिश्चियनों ने बनाया था, क्योंकि एक बात वहां पर की गई थी कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। तो वहां पर भी एक क्रिश्चियन था जिसने ये कहा था कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बचाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बचाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तेहाद रखें, इत्तेहाद में बरकत है।
احتجاج تو 2016 میں ہی شروع ہو گیا تھا، کیونکہ 2016 میں ایک اپوزیشن کے ایم پی اے نے چائلڈ پروٹیکشن منورٹی پروٹیکشن بل پیش کیا تھا، اور وہ بل اسمبلی میں پاس بھی ہو گیا، لیکن پھر وہ بل پاس ہونے کے بعد گورنر صاحب نے روک دیا اور وہ بل شیطان کی آنکھ بن گیا۔ اس کے بعد وہ بل ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد فورس کنورژن کے نام سے دوبارہ یہ بل سینٹ میں گیا فروری 2021 میں۔ جب 2021 فروری میں یہ بل سینٹ میں پہنچا تو وہاں پر اقلیتوں کو مایوس کرتے ہوئے اقلیتوں کو مایوس کرتے ہوئے اس بل کو ریجیکٹ کیا، اور ہم اپنی اقلیتی سینیٹر ہماری بہن جو اس دن سینیٹر اور بھی تھے لیکن شاید ان کی رگوں میں کوئی اور خون تھا اور اس بہن کی رگوں میں کوئی اور خون تھا، اس نے واک آؤٹ کیا۔ اس نے کہا اگر منورٹی کے حق کا بل ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو میں اس سینٹ سے واک آؤٹ کرتی ہوں۔ میں اس بہن کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 13 اکتوبر کو ہمارے ایم این ایس، ہمارے جتنے بھی وہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے لوگ تھے وہ سب مایوس ہوئے 13 اکتوبر کو، کیونکہ 13 اکتوبر کو لیجسلیشن کے لیے، اس پہ نظر ثانی کے لیے اس بل کو نیشنل اسمبلی میں پیش ہی نہیں کیا گیا۔ کہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیحی اور اقلیتیں پاکستان میں محفوظ ہیں؟ یہ ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ تھا جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور آج بھی آپ لوگ یہاں ہیں اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج سندھ حکومت کا احتجاج ہے مہنگائی کے خلاف، اور ہمارے ہی منورٹی کے لوگ اس احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو دیہاڑیاں ملتی ہیں۔ اگر ان کے اندر غیرت شرم ہوتی تو آج اس پنڈال کا حصہ ہوتے۔ بہت برا لگتا ہے دلاور بھٹی، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے والا ہمیشہ برا لگتا ہے۔ ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، اس کے ساتھ میں وعدہ کروں گا اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ سر، بہت شکریہ تمام ان ڈینومینیشنز کا جنہوں نے اس احتجاج میں شرکت کی اور سارے معاملات کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو میں چاہوں گا کہ کوئی عقل دو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ خود مختار ہے۔ اگر پنجاب میں مہنگائی ہے تو وہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، لیکن اگر سندھ میں مہنگائی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے۔ تھینک یو، شکریہ، تھینک یو جی۔ یسوع مسیح کے عظیم اور اتم نام میں آج دوپہر آپ سب کی خدمت میں اس افسوسناک واقعہ میں محبت برا سلام پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مسیح یسوع کے لیے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے زوردار اس کے لیے تالیاں بجائیں اور ایک نعرہ لگائیں گے، سب سے پہلے
میں پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہوں جنہوں نے چند اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے گھناؤنی حرکات کرنے والوں کے اپنی لپیٹ میں لیا اور ان کے ساتھ سمجھوتا کیا اور اقلیتوں کے ساتھ ہمیشہ زیادتی پر زیادتی کی جا رہی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب آپ تو ایک نئی امید ان کے پاکستان کے اندر لے کر آئے تھے, وہ کہاں گئی امیدیں؟ آپ ایک نیا پاکستان بنانے کی امید لے کر آئے تھے, لیکن ہم غلط کرتے سے نئے پاکستان کو پیچھے زور طریقے سے مذمت کرتے ہیں, آپ کی پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. ہمیں پرانا پاکستان چاہیے, وہ قائد اعظم کا پاکستان چاہیے جس نے اناؤنس کیا تھا کہ مساوی حقوق سب کو ملنے چاہیے. اور تمام جتنا بھی اس بل کو مسترد کیا گیا جبری مذہب تبدیلی کا, ہم تمام تر اقلیت کے لوگ یہاں پر ایک پیج پر متحد ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن رہیں اور ہماری اقلیتوں کو اب مفلوج کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ غیور قومیں ہیں, غیور لوگ ہیں, وہ آپ کو ہمیشہ محب وطن ہے, آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, تمام تر اداروں کی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں, ملک پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے بقا کے لیے دعا کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ ہمیشہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ مینارٹیز کے ساتھ زیادتی کیے جا رہے ہیں, لیکن ہوش کے ناخن نہیں. میں تمام تر ایجنسی سے, پاک آرمی سے, چیف آف آرمی سے گزارش کرتا ہوں, عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری قوم کے ساتھ, ہمارے مینارٹیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس گھناؤنی حرکات سے باز آئیں, ورنہ آج ہزاروں کی تعداد ملک پاکستان کے اندر نہیں, شہر کراچی کے اندر نہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اور آپ کی حکومت پر نہ صرف ملک پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں تنوع کیا جا رہا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب جتنے بھی اسمبلیز میں بیٹھے ہیں ہوش کے ناخن لیں اور ہماری قوم کی تذلیل نہ کی جائے, ہماری بیٹیوں کی, ہماری ماں کی, ہماری بہنوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش نہ کی جائے, ورنہ ہمارے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے اٹھ کھڑے ہیں, وہ بہادر ہیں, لیکن کہیں عواموں کا رخ نہ کر بیٹھو. اس سے پہلے کہ عوام تک پہنچے آپ ہوشوں کے ناخن لیں اور جبری مذہب کی تبدیلی کے قانون کو بند کیا جائے. ہم پر امید ہے کہ آج کے احتجاج کو دیکھ کر آپ کو اثر ہوگا. گاڈ بلیس یو. Honorable President of Pakistan and Prime Minister, I humbly request you for this cause. ہم as پاکستانی bona fide citizen ہوتے ہوئے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو جبری مذہب تبدیلی کا قانون پاس کیا گیا ہے, I have humble request کہ اسے اسٹاپ کیا جائے.
फोर्स कन्वर्जन स्टॉप की जाए। इसी तरह हरासमेंट और सेक्सुअल जो बच्चों के साथ हो रहा है, सेक्स हो रहा है, इसको बंद किया जाए। इसी तरह मसीही बेटियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और मसीही बेटों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो किडनैपिंग हो रही है, उसे मेहरबानी से बंद किया जाए। मुझे यूं लगता है कि जैसे हम एंशिएंट टाइम के अंदर है, मेडिवल एरा में नहीं, मॉडर्न एरा में नहीं, बल्कि हम एंशिएंट टाइम में चले गए हैं। और उस वक्त क्या होता था, ह्यूमन राइट्स जो आज यूनिवर्सल डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और हम आज भी एंशिएंट टाइम में हैं, अपने हकूक के लिए यहाँ पे खड़े हैं और अपील कर रहे हैं। क्या होता था कि जो पावरफुल कबीला होता था, लोग उसको सारे हकूक देते थे और उनके साथ सब खड़े होते थे। आज भी यही है कि जो पावरफुल है उसकी बात मानी जाती है और जो पावरफुल नहीं है उसकी बात नहीं मानी जाती। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर हमारे अबाउजदाद की कब्रें हैं यहाँ पे हमें फोर्स कन्वर्जन के लिए जो बिल पास करने को कहा जा रहा है, उसे मुस्तरद करने के लिए हम अपील करते हैं। हमारे साथ ये ज्यादतियां हैं, हमारी 9 साल बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, मुल्लागर्दी बंद करो, पसंदी बंद करो, दहशतगर्दी, ये मुल्लागर्दी, ये पसंदी कायम कर है। कभी तो शांति नगर जला दिया जाता है और कभी कोई बस्ती जला दी जाती है, कभी कोई टेम्पल जला दिया जाता है और कभी कोई चर्च जला दिया जाता है। यहाँ पे ना तो हिंदू जो है महफूज है, ना पारसी महफूज है, कोई अकलियत महफूज नहीं। और जब बैरून मुल्क जाते हैं हमारे लीडर्स और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम महफूज हैं, हम आजाद हैं, ये जो बयानात दिए जाते हैं हम उसे कंडेम करते हैं। और उन लीडर्स की बेटियों के लिए भी हम ये कहेंगे, अगर उनकी बेटियों के साथ ऐसा हो तो फिर क्या होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अपील को जरूर इसके ऊपर गौर खास किया जाए और हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, इसे स्टॉप किया जाए। और हमें जो 5% कोटा है वो नहीं दिया जाता, वो भी दिया जाए। इसी तरह जो हरासमेंट की जाती है उसे स्टॉप किया जाए और जो नौजवान बेटों को किडनैप किया गया है उन्हें आजाद किया जाए। शुक्रिया। सब भाइयों से मेहरबानी से, और ये ब्रॉडकास्ट सिलसिला आप सब के लिए है। आइए हम चाहेंगे खुदा के खादम पास्टर कैसर साहब आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। सब मुतवज्जो हों। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में यहाँ पर प्रेस क्लब पर मेरी माओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, नौजवानों और खुदा के खादमों, आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। और मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आज मुत्तहदा मसीही कौंसिल के सारे दोस्तों का, भाइयों का, हम भी उसका हिस्सा है, जिन्होंने मुझे दावत दी और यहाँ पर 2 मिनट स्पीच करने का मौका दिया। और मैं ये चाहता हूँ आपकी तवज्जो कि आप गौर से 2 मिनट बात सुनिएगा। जो अकलियतों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है वो एक मतरई माँ जैसा सलूक है जो अकलीतों से किया जा रहा है। खासतौर पर जो मसीहों से हो रहा है वो ऐसे है जैसे हम किसी मतरई माँ के बच्चे हो और हम यहाँ पर महाजिर हो, हम बाहर से आए हो। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे अबूज दादा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, जानें दी, मगर आज हमें इस मुल्क में
यहाँ पे लॉ एनफोर्सिस एजेंसीज के जो दोस्त सिविल में घूम रहे हैं और जो मीडिया के लोग हैं, आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर एक ही दिन में, एक ही मिनट में 33 बिल पास हो जाते हैं तो हमारा एक बिल क्यों नहीं पास होता? एक बिल आपका 1 मिनट में 33 बिल आप अपने पास करते हैं, बिल नहीं पास करते। लेकिन ये मीडिया के थ्रू हम आपको बताना चाहते हैं कि आज तक तो हम पुरअमन हैं। अगर हमें इसी तरह सताया गया, तंग किया गया, हमारी बेटियों की तरफ हाथ बढ़े तो हम डी चौक बंद करना भी जानते हैं। हमें इस्लामाबाद में रुकना भी आता है। हमारे नौजवानों में भी एक एक पूरी हड्डी, आप जैसे जितने आपके नौजवानों में है इतनी ही हमारे नौजवानों में भी हड्डियां पूरी है और हम भी सारा कुछ अपना हक भी छीनना जानते हैं। मगर क्यों कि हमारे कलाम में यह लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबिया रहो, ये ना हो कि हमें ताबियादारी से बाहर आना पड़े, हमारे हक हमें छीनने पड़े अगर हमारे साथ इसी तरह जुल्म किया गया तो। मेहरबानी, शुक्रिया। जी मैं लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 1927 में जब मुतहदा हिंदुस्तान था तो आप भी जबरी मजहब तब्दीली की बात करते थे। आज पाकिस्तान आजाद है तो यहाँ पे मसीही अक़लियत है और ये वो मसीही है जिन्होंने पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था। अगर एसपी सिंह साहब और जी गवर्न वोट न देते तो ये आपका जो पंजाब है पाकिस्तान का हिस्सा न होता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान है। यहाँ के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है, ये मजहबी जुनूनियों की स्टेट नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज आप एपीएस के दहशतगर्दों की जिन्होंने बच्चे मारे थे उनको भी आप गले लगा रहे हो। हम देख रहे हैं कि आप हर उस मजहबी जुनूनी को गले लगा रहे हो। इमरान खान, आपको ये देखना होगा कि आपने 150 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए, लेकिन 13 मुल्ज़मान हैं, 13 मुल्ज़मान है जो मरकजी मुल्ज़मान है। आप अगर 13 मुल्ज़मान को फांसी लगाते हो तो आइंदा कोई भी मजहबी ज़्यादती का केस शिकार नहीं होगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि ये केस उलझ जाए। हम ये नहीं चाहते कि ये केस उलझे, क्योंकि हम बहुत सी जानों को गंवा चुके हैं, हमारे बहुत से मसीह शहीद हो चुके हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो 13 मुल्ज़मान हैं उनको फांसी लगाया जाए और सियालकोट दरमा वाले चौक पे, जो मशहूर जगह है वहां की, दरमा वाले चौक पे फांसी लगाया जाए।
इनको फांसी नहीं लगाओगे तब तक ये केस रुकने वाले नहीं है। और मैं बताता चलूं कि मसीह सबसे कमजोर शिकार है तुम्हारा। इमरान खान सबसे कमजोर शिकार मसीही है, क्योंकि आप जाती दुश्मनी की बिना पे हम पे इल्जाम लगाते हो और हमारे बेहद लोग मारे जाते हैं। इसलिए आप उन 13 मुलजमान को जो मर्दरी मुलजमान है उनको फांसी की सजा दो, ताकि आइंदा मसीहियों के खिलाफ और किसी भी उसके खिलाफ केस ना हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम शुरका को जो आज के इस पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे में दूर नजदीक से शरीक हुए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम करते हुए आज के इस कामयाब एहतजाज की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी बात का आगाज इस शेर के साथ, अभी तक पांव में लिपटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पांव में लिपटी है जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आजादी का, आजादी नहीं आती। ये अलमिया है पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतों का। आज अकलियतों का जम्मे गफीर कराची प्रेस क्लब पर मौजूद होकर हुक्मरानों से ये मुतालबा करता है कि अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ और जबरी तब्दीलियों मजहब के खिलाफ पेश किया जाने वाला बिल जो मुस्तरद किया गया, हम भरपूर अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं और तमाम अकलियतों की तरफ से बिलखसूस और पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल की जानिब से मुतालबा करते हैं कि यह बिल मंजूर करके हमें इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि अकलियतें पाकिस्तान में महफूज हैं। अलमिया कुछ ये है कि हर एक सतह पर और हर एक तरह से अकलियतों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं और हमें ये कहकर तसल्ली दी जाती है कि अकलियतें पाकिस्तान में महफूज। सवालिया निशान ये है, हमारे चर्चेस जलाकर ये कहा जाता है कि अकलियतें महफूज। मजहब की बुनियाद पर हमारी मसीही आबादियों को, पूरी की पूरी आबादियों को जलाकर कहा जाता है कि अकलियतें यहाँ पर महफूज। हमारी 10 साल 12-12 साल की बच्चियों को अगवा करके, मेंटली टॉर्चर करके, उन्हें बरगरा कर, डरा धमका कर, मजहब तब्दील कराकर ये कहा जाता है कि अकलियतें यहाँ पर महफूज हैं। आप जो बंद कमरों में, ऐवानों में बैठकर ये फैसला करते हैं, आज न सिर्फ कराची प्रेस क्लब में बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अकलियतें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि हमारे हकूक का बिल मंजूर किया जाए। अदालतों में हमारे साथ ज्यादतियां, थानों में हमारे साथ ज्यादतियां, कचहरी, सड़कें, हर तरह के अदारों में हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। मैं दरखास्त करता हूं आप तमाम की मौजूदगी में हुक्मरान बाला से, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, हम तमाम से ये मुतालबा करते हैं कि अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर करके हमें ये एहसास दिलाया जाए कि हम इस मुल्क में बराबर के शहरी हैं और अपने हकूक की जो आवाज उठा रहे हैं वो
حکمران سن رہے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. بہت شکریہ. میں آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے دن اور 13 اکتوبر کو ہمارا بلیک ڈے ہے. ہماری لڑکیوں کے ساتھ اور ہماری خوبصورت لڑکیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. ہمارے لڑکے اسلام کیوں قبول نہیں کرتے؟ ہماری لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں اور دوسرے تیسرے دنوں کورٹ سے ملتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں. ہم کیا بیوقوف ہیں یہاں پر؟ اور وہ آئے دن جو ہے وہ ڈرامے اسٹیج میں تماشے کر کے ہمیں ڈگڈگی بٹھا کر ہمیں تماشا دکھاتے ہیں جیسے ہم کوئی اناڑی ہیں. اگر میرے جیسا کوئی اسکالر ان سے بات کرے, ان سے آرگومنٹ کرے, آپ یقین کریں میں ان کی تہس نہس کر دوں معذرت کے ساتھ. انہوں نے وداؤٹ آرگومنٹ یہ کام کیا ہے. پورے پاکستان کے جتنے بھی ہندو سماج کے لوگ رہتے ہیں اس شر پسند عناصر کو ہم لوگ سامنے لائیں گے. فورس کنورژن کے معاملوں کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور آج ہم لوگ جو عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کو عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ ہم لوگوں نے معاملہ طے کر لیا ہے. کرسچن لوگ اور یہ جتنے بھی جو 96 جو لوگ ہیں ان کے یہ جو معاملے ہیں وہ ہم نے طے کر لیے. عمران خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کیا آپ نے. تو آج ہم قائد اعظم کو یاد کر رہے جس نے پاکستان کو بنایا تھا کہ سنو اے قائد اعظم تمہیں ہم یاد کرتے ہیں. بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہنے سے ڈرتے ہیں. سنو اے قائد اعظم تمہیں ہم یاد کرتے ہیں. دلائی ہمیں آزادی, دلائی ہمیں آزادی تدبر سے, عقیدت سے ملا کرتی ہے. یہ نعمتیں نصیبوں سے, مقدر سے یہ نعمت چھین بھی سکتی ہے رویے جو بدلتے ہیں. سنو اے قائد اعظم تمہیں اقلیت یاد کرتے ہیں. سنو اے قائد اعظم تمہیں اقلیت یاد کرتے ہیں. تمہاری پھر ضرورت ہے, یہاں حالات ہے ایسے. تمہاری پھر ضرورت ہے, یہاں حالات ہیں ایسے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا چلے گا ملک یہ کیسے. اشانتی کا ماحول ہے, نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. سنو اے قائد اعظم تمہیں ہم یاد کرتے ہیں. سنو اے قائد اعظم تمہیں اقلیت یاد کرتی ہے. سنو اے قائد اعظم تمہیں مائنورٹیز یاد کرتی ہے. ہم تمام لوگ اس بل کو جو ہمارے بل تھا جو انڈیپینڈنٹ اور انڈیویجولی ریلیجس پریکٹس کے لیے تھا اس کو نامنظور کیا گیا ہے. شدید الفاظوں میں ہندو برادری اس کو کنڈیم کرتی ہے, اس شرمناک ایک کو کنڈیم کرتی ہے. اور آج کا یہ پروٹیسٹ کراچی پریس کلب میں ریکارڈ کروا رہی ہے کہ ایسے کوئی بھی بل جو انصاف پر مبنی نہیں ہم اسے منظور نہیں کریں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ریاست مدینہ ہے. کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ آپ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. جہاں اقلیت آزاد ہے, ہماری بیٹیاں آزاد ہے, ہماری بیٹیاں غائب ہو جاتی ہیں, 4-4 5 دن ملتی نہیں ہے اور کورٹ سے ملتی ہے اور کہتی ہے بھائی انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا. تو بھائی ہمیں ہمیں ایسا قانون نہیں چاہیے, ہمیں ایسا قانون نہیں چاہیے. ہماری بچیوں کو ہم ایجوکیشن دیتے ہیں, چھوٹا بڑا پرویش کرتے ہیں, اور جب اس طریقے سے وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے اس کا کڈنیپ کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اینولی یہاں پر 1000 لڑکیاں اور مور دین 1000 لڑکیاں اٹھائی لی جاتی ہیں, کڈنیپ لی جاتی ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کر گورنمنٹ کے ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, نور الحق قادری صاحب, علی محمد صاحب, پی ٹی آئی گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے خدایا کنسیڈر کیا جائے سیریسلی ہماری اس ایکٹ کو. پاکستان کی بہت جو ہے بدنامی ہو رہی ہے. ثانیہ ہے, سیاہی بورڈ آپ کے سامنے ہے, جواب دینے بھائی بڑے ہیں آپ لوگوں. ایسا نہ کرے خدایا, پاکستان کو بہت مشکلوں سے بڑی ترقی کے ساتھ
अकलियतों का रोल है इसमें। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, हिंदुओं ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है पाकिस्तान को बनाने में। इतिहास गवाह है, आप क्यों भूल गए इस बात को और आज आप पावर में आके सारी चीजें भूल गए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर, मैं हिंदू स्कॉलर मनोज चौहान आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर तमाम हिंदू बिरादरी की तरफ से, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से इस पर कंसीडर किया जाए और इस बिल को दोबारा रिव्यू किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मसीह में तमाम मेरे मसीही बहन भाइयों को सलाम। मैं आसिफ बास्टियन, प्रेसिडेंट सिंध वॉइस फॉर जस्टिस। मैं इस अमन एहतजाज की कामयाबी पर हम तमाम मसीही बहन भाइयों को पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बाद मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जबरी मजहब तब्दीली के हवाले से मेरे तमाम मौजूद पादरी साहबान ने और सब ने एक भरपूर किस्म की आपको ब्रीफिंग बताई और हुकूमत तक हमारी आवाज़ यकीनन पहुंची है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये मुल्क जो कि अक़लियतों के नाम पर बना था, जिसमें लोग कहते थे कि अक़लियतें बड़े पाको हिंद में महफूज नहीं होंगी, तो हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग मुल्क चाहिए जिसमें अक़लियतें आज़ाद से रहे। आज उसी मुल्क में अक़लियतें किस तरह दम तोड़ रही हैं, उनके साथ जो जो जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, दुनिया देख रही है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ जबरी मजहब तब्दीली, बल्कि हम पर हर जगह, हर फोरम पर किसी न किसी तरह से मजहब के नाम पर दहशतगर्दी होती है। कभी वो नौकरियों के नाम पर, कभी वो किसी हमारी मसीही जो नर्सिस हैं उनके साथ हो रही हैं, और किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी मसीही पर, किसी भी अक़लियत नुमाइंदे पर झूठा इल्जाम लगाकर उनको या तो मार दिया जाता है या जलील करके जेलों में डाल दिया जाता है। इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा अपने हकाम बाला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वो हमेशा कहते थे कि जुल्म का निज़ाम चल जाएगा लेकिन कुफर का निज़ाम नहीं चलता। कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। तो आज ये जुल्म जो अक़लियतों पर इस मुल्क में हो रहा है, क्या वो ये निज़ाम चला सकेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज जो सेंट कैथरीन के साथ इस्लामी लीडरशिप की मुआहदा हुआ था, आज उसको जरा गौर से देखें। उसमें क्या लिखा था? सेंट कैथरीन के साथ जो मसीहियों का मुआहदा और इस्लामी लीडरशिप का मुआहदा हुआ था, वो यही हुआ था कि किसी को जबरदस्ती मजहब तब्दील नहीं करवाया जाएगा, ना मारा जाएगा, ना कूटा जाएगा, ना ज़दोकोब किया जाएगा। तो आज उस मुआहदे की इज्जत रख ले, कम से कम उस मुआहदे को याद करें। उसी की रोशनी में आप मसीहियों को, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। इससे ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, बल्कि अक़लियतें भी अपने आप को महफूज समझेंगी। तो हम एक अच्छा पाकिस्तान और एक अच्छा मुआशरा बना सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब के लिए सलाम पेश करता हूँ। आज हमारे लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। आज का जो हमारा मौक़िफ़ है, जबरन मजहब तब्दीली का जो बिल पेश किया गया, जिसमें 18 साल से कम उम्र किसी भी लड़की का निकाह नाजायज, कानूनी तौर पर नाजायज है, इस बिल को नामंजूर किया गया है। कुरान मजीद का एक हवाला है जिसमें यह लिखा है कि ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। और ताहिर अशरफी साहब ने यह कहा है कि यह बिल गैर इस्लामी है। कयूम भाई के साथ मिलकर यह मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। इख्तिताम में जबकि ये महफिल, ये एहतजाज बर्खास्त होने को है,
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बिल गैर इस्लामी है तो इसको मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा? इसके मंजूर होने में क्या इसमें कबाहत है? सो हमारी अपील है, तमाम मसीही जमातों की अपील है कि इस बिल को मंजूर करके हमारा हक हमें दिया जाए ताकि हमारी बेटियों की इस्मतें महफूज रहे। शुक्रिया। तमाम दोस्तों साथियों को मेरी तरफ से सलाम। मेरी आई हुई जहाँ पे बहनें, माएँ, बेटियाँ और तमाम सियासी समाजी तंजीमें जिन्होंने इस एहतजाज को कामयाब बनाने में किरदार अदा किया, OPCA, PCCI, वॉइस फॉर जस्टिस, CPA, पेंटिकॉस्टल चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, कैथोलिक चर्च और तमाम जितने भी दीगर इदारे जिनका मैं नाम लेना भूल गया, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारा यहाँ आने का मकसद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था कि जो 13 अक्टूबर को पार्लियामेंट से जो बिल मुस्तरद हुआ, फोर्स कन्वर्जन का, अंदाजा देखो अकल का, अंदाजा देखो उनके शोर का, ये खुद ही बिल बनाते हैं और खुद ही इसको चेक करते हैं। यानी आपको अपने हुक्के पे भरोसा नहीं, आपको अपने कहे पे भरोसा नहीं, यानी वो बात तो फिर सच है ना कि यूं तो हमारी। और हमने जितने भी इंटरनेशनल और पाकिस्तान में बसने वाले सियासी समाजी दोस्त जो हमारे साथ राब्ते में है, हमने फैसला किया है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट से पास ना हुआ या रिव्यू में ना गया तो हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। मैं तमाम दोस्त जो यहाँ पे आए हैं उनसे मुखातब हूँ, क्या इस चीज के लिए आप तैयार हो? इससे से बढ़कर कोई चीज नहीं, पैसा जाए तो मिल जाता है, इससे से बढ़कर कोई नहीं। हमारी इज्जत महफूज नहीं तो हमें अपनी जानें भी देनी पड़ेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम गैरतमंद लोग हैं, गैरत रखते हैं, इस मुल्क की सड़कों को अपना खून देकर सींचा है। हमने ये फैसला कर लिया है कि जब तक जब बिल पार्लियामेंट से पास नहीं होगा हम सुकून से नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। उसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़ा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। या पहले सुन ले, एजेंसी सुन ले कि हमसे जो हो सका हम करेंगे। हमने हमेशा इस मुल्क की सालमियत के लिए दुआएं की हैं, अपनी जगह दी है, कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जब हमारी हिस्सों पे आप बात आएगी तो फिर हिस्सों से इज्जत से बढ़ के कोई नहीं है। हम गैरतमंद लोग हैं, इज्जत रखते हैं। अगर हमारी इज्जत महफूज न हुई तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। ये मेरी बात नोट कर ले, अगर हमारी इज्जत महफूज न होगी तो फिर कोई महफूज नहीं होगा। आपने जो करना होगा मेरा कर लीजिएगा, आपने जितनी धमकियां हमें देनी हो दे लीजिएगा, आपने हमें जो प्रोपोगेंडा करना हो कर लीजिएगा, लेकिन ये काम हम न रुकेगा, न थमेगा। मुत्तहदा मुस्लिम काउंसिल के प्लेटफॉर्म से तमाम सियासी समाजी दोस्त मुत्तहदे जा रहे हैं, बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि हमें अलग करने की, लेकिन ये आपके तमाम हथकंडे नाकाम होंगे। हमारे दोस्त एक पेट पे हैं, मुतहद हैं, एक ही इनका मुतालबा है, हमें ना रोटी दो
माल नौकरियां दे, मगर हमें इज्जत से जीने दो। गलियां मोहल्ले सब होता रहेगा, रोडें बनती रहेंगी, लेकिन इज्जत अगर हमारी जान महफूज होगी तो फिर इज्जत किसी की नहीं रहेगी। मैं तमाम आने वाले शुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम लेना, मगर किसी का नाम लेना, वसीम भाई, जाफर छोपड़िया साहब भी आए हैं, माना सियाह साहब भी हैं, सैमुल भाई और तमाम जितने दोस्त यहाँ पे हैं, नून लीग से, एमकेएम से, पीटीआई से और दीगर सियासी जमातों से, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी माजरत के साथ हमारे साथ जयपाल छोपड़िया साहब मौजूद हैं, लेकिन ये इस मिलावटी कमीशन का हिस्सा है जिसका ना दफ्तर है, ना उनका नंबर है, ना कोई ऑफिस है। ये जयपाल छोपड़िया साहब, ये हमारी रियासत की नाकामी है, कमजोरी है कि जिस कमीशन का हिस्सा है उसका ना दफ्तर है, ना उनका टेलीफोन नंबर है, ना कोई रास्ता है, ना वो कहीं मिलावटी के इशूज पे बात कर सकते हैं। तो अब मेरा प्रोग्राम क्या लेके आए हैं जयपाल छोपड़िया साहब, वो ध्यान करेंगे। बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वाले, मेरा तो तारुफ इन्होंने करा दिया क्योंकि मैं नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज का मेंबर हूँ, और मैं सलाम करता हूँ आप लोग जो सब यहाँ शामिल हुए हैं। ये आप लोगों ने कोशिश की है। अब मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता कि नेशनल कमीशन काम कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ इतना तो जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में पहली दफा नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज काम कर रही है। 70 साल में पहली दफा चेयरमैन गैर मुस्लिम बना है, पहले किसी हुकूमत ने गैर मुस्लिम को चेयरमैन नहीं बनाया था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सारे लोग एक तरफ हो जाए, डॉक्टर जयपाल मिनॉरिटी कमीशन में अभी भी लास्ट मीटिंग हुई थी 15 तारीख को, तो उसमें हमने एजेंडा पे रखा था फोर्स कन्वर्जन, और हमारी वजह से एक कमेटी बनी है जिसमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन भी हमारे साथ बैठेंगे, किबराया साहब, और हम मसले का हल ढूंढेंगे कि इसका मसले का हल क्या हो सकता है। तो आपको यकीन दिलाता हूं, इस मुल्क में न कोई हमें डरा सकता है न धमका सकता है। जो दोस्त ने बोला डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम भी उतने मोहब्बे वतन हैं जितना कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, जितना आज का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, जितनी बेनजीर भुट्टो थी या बिलावल भुट्टो है या मरियम नवाज शरीफ है, किसी को बताने की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाया था, ये हिंदुओं ने और क्रिश्चियनों ने भी बनाया था, जो कि मंडल ने भी बनाया था, एसपी सिंह ने भी बनाया था। आज का पंजाब पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकता था अगर एसपी सिंह वोट नहीं देता था। तो ये तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जयपाल छोपड़िया साहब बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए आप मेहरबानी। ये मेरा पाकिस्तान है और उतना मेरा है जितना इमरान खान का है, और इस पाकिस्तान में जयपाल को उतने हुकूक चाहिए जितने बिलावल भुट्टो को मिले हुए हैं। हमें आइन से भी निकालना पड़ेगा कि जो गैर मुस्लिम सदर नहीं हो सकता, वजीर आजम नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी हमें निकालवाना पड़ेगा। हमें उतनी बराबरी चाहिए जितनी एक पाकिस्तान के मुसलमान शहरी को बराबरी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसके लिए हमें इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कराची में, लाहौर में बैठ के, जैकबाबाद में बैठ के हम अपने हकूक ले सकते हैं। सिर्फ हमें
अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी, हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इस मुल्क की रियासत बिल्कुल हमें हकूक देगी। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में पाकिस्तान सिग्नेटरी है, जो उन्होंने 10 दिसंबर आज जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है, इस पे सिग्नेचर पाकिस्तान ने भी की है, जिसका पहला आर्टिकल है, यू आर ऑल बॉर्न ह्यूमन बीइंग्स एज यू हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल डिग्निटी। जो वो बराबरी जितनी दूसरे मुसलमान शहरियों को है उतनी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 1927 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था कि 18 साल से कोई भी कम उम्र लड़की कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये हमने नहीं किया था, ये रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था, ये रेजोल्यूशन कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान के तमाम मुस्लिम लीगी अहदेदारों ने किया था। आज हम डिमांड कर रहे हैं, उस वक्त मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट हो रही थी, आज हमारी लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हम इस मुल्क में चाहते हैं, ये कोई इस्लाम के खिलाफ बात नहीं है। इस्लाम में लिखा हुआ है कोई भी वली के मर्जी के बगैर लड़की शादी नहीं कर सकती, तो हमें ये हक क्यों नहीं दिया जाता था? इस्लाम में लिखा हुआ है कि पहले मर्द से जब शादी की हुई है तो जब औरत उससे तलाक नहीं लेती तो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो हमारी गैर मुस्लिम लड़की शादीशुदा औरत को क्यों उठाया जाता है, उसको क्यों ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता है? सिंध में पूरे पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज लॉ मौजूद है। 18 साल से कम उम्र अगर मुसलमान लड़की निकलती है तो उसको वापस उसके बाप को दिया जाता है, लेकिन हिंदू और क्रिश्चियन को वापस क्यों नहीं दिया जाता? ये शर्म की बात है, ये बायस है, ये अदालत भी हमारे साथ बायस होती है। पाकिस्तान में लॉ मौजूद है कि 16 साल से कम उम्र कोई भी लड़की विद कंसेंट भी सेक्स नहीं कर सकती, तो हमारी 12-13 साल की लड़की कैसे सेक्स कर सकती है? तो ये मौजूद जो लॉ मौजूद है उसका तहफ़्फ़ुज़ एक गैर मुस्लिम लड़की को क्यों नहीं दिया जाता? आरज़ू को शेल्टर में क्यों रखा जाता है? जब लाहौर हाई कोर्ट एक क्रिश्चियन लड़की को वापस कर चुकी है, उसका फैसला मौजूद है, जब माइनर मौजूद वापस दे सकती है तो दूसरी कोर्ट उसको शेल्टर होम में कैसे रख सकती है? मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं मिनाटी कमीशन में हूँ, मैं PTI में हूँ, कहीं भी रहूँ, ये हम अपना हक लेंगे, क्योंकि हम जो सियासत करते हैं वो अपने हुकूक के लिए करते हैं, किसी की खुशामद के लिए नहीं करते हैं। तो हमें भी बराबरी चाहिए इस पाकिस्तान में, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हमारी बच्चियों को जबरी मजहबी तब्दीली जो किया जा रहा है, और ये बिल हम मंजूर करवा के रहेंगे। थैंक यू और शुक्रिया। पाकिस्तान में एक मसीह हूँ। मैं अपनी बहनों को, बेटियों को, जो खुदा की शहजादियां हैं, उनको इतना कहना चाहूंगी कि, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इतना कहना चाहूंगी, हुकूमत को, गवर्नमेंट को इतना कहना चाहूंगी कि आज हमारे बाप, हमारे भाई जिंदा है, जिन्होंने हमारे सर पे दुपट्टा उतरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। हमारे भाइयों ने आज हमें संभाला है। हालेलुया, हालेलुया।
पहले हम नारा लगाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि आप सब तो जानते हैं कि हम यहाँ किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ जबरी मजहब तब्दीली के लिए हम जो है इस कानून को जो पास नहीं हो सका उसके जो है हम उसको जो है पास करवाने के लिए उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं और हमें अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और पाकिस्तान मुस्लिम मिनॉरिटी विंग से मेरा ताल्लुक है और पाकिस्तान मुस्लिम मिनॉरिटी विंग जो है इस भरपूर एहतजाज की हमायत करती है और इस जबरी मजहब तब्दीली की भरपूर मुखालफत करती है। और मेरी एक दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने कफन पहने हुए हैं वो आगे आ जाएं। जिन लोगों ने कफन पहने हुए हैं वो आप आगे आ जाए मेरे भाई, जिन्होंने ये कफन पहना हुआ आप आगे आ जाए, दिखाएं आप लोगों को कि हमारी हालत क्या है कफन पहनी कौम से। अरशद एंथनी भाई, अरशद एंथनी भट्टी साहब आप ऊपर आए, क्योंकि आप असल आए इख्तियार करके जो एहतजाज का रूप होता है, आप ऊपर आए। वोट फादर वेलफेयर के चेयरमैन अरशद एंथनी साहब ऊपर, इनको ऊपर लेके आए। मैं जो है आप सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप इस बारे में भी एहतजाज करें कि हमारे मसीही एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर्स, रुकन कौमी असेंबली उनको चाहिए कि अपनी कौम को ऑन करें। वो जो ख्वाबे खरगोश सोए हुए हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्हीं अवाम की बदौलत जो है, इन्हीं मसीहों की बदौलत, इसी मिनॉरिटी की बदौलत जो है वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, सीटों के मजे ले रहे हैं। और मैं चाहता हूं, आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ कोई हमारा एमपीए, एमएनए, सेनेटर, कोई रुकन कौमी असेंबली जो है इस कौम को ऑन करने नहीं आया। तो खुदाया होश के नाखुन ले ताकि कल ये कौम आपके गिरेबान तक हाथ न ले आए कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और मैं चाहता हूं कि अवाम को उनको याद दिलाना चाहिए कि वो हमारे रहनुमा हैं, हमने उनको असेंबलियों में नुमाइंदगी दिलाई है। वो इसी कौम को बेवकूफ बनाकर असेंबलियों में पहुंचे हैं और अभी तक बेवकूफ बना रहे हैं, कभी नौकरियों के नाम पर, कभी रोटी के नाम पर, कभी मकान के नाम पर। और मैं चाहता हूं कि वो जो है अपने होश के नाखून लें। और जबरी मजहब तब्दीली का जो बिल असेंबली में पेश किया गया था, अगर हुकूमत ने वो पास ना किया तो ये एहतजाज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में फैल जाएगा और आपको ये रोकना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.